تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سائٹ سپر ہائی وے پر اینٹی انکروچمنٹ کا بڑا آپریشن، قبضہ مافیا کا ٹیم پر حملہ، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ قبضہ مافیا کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو نقصان پہنچا، سڑک کنارے الٹا دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپر ہائی وے کے علاقے میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن، انسداد تجاوزات ٹیم کو مزاحمت کا سامنا، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے پر انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کے کارندوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ٹیم کا گھیراؤ کر لیا، جس کے باعث علاقے میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس اور قبضہ مافیا آمنے سامنے آئے۔ قبضہ مافیا کے کارندوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک کنارے الٹا دی۔ آپریشن کے دوران انسداد تجاوزات ٹیم کو شدید مزاحمت کا سامنا رہا۔ شرپسند عناصر کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی، جس کی وجہ سے آپریشن کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا، تاہم حالات سازگار ہوتے ہی دوبارہ آپریشن شروع ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر اعجاز علی حالی پوٹو کی سری 21 سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتعل افراد نے ٹیم کو زد و کوب کیا، میری گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ جیسے ہم نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا یا اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی تو کافی لوگوں کے تعداد میں اپنے پتھرا اور کچھ ویپنس وغیرہ کے ساتھ ہمارے اوپر اٹیک کیا، جس کے دوران جو میری جو سرکاری گاڑی تھی ان کو انہوں نے پتھراؤ کر کے ڈیمیج کر دیا ساری گاڑی کو۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارے لوگوں پہ، پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کے اوپر اور جو ہمارے ساتھ جو ٹرین وغیرہ تھی ان کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا، ایئر فائرنگ وغیرہ بھی کی، تو ڈائریکٹلی اوپر سے کہیں سے فائر آ رہے تھے۔ تو اس دوران جو ہے ہم نے وہاں پہ پولیس کو جو ہے پابند کر لیا۔ ٹیم نے گرینڈ آپریشن کے بعد وسیع رقبے کو قبضہ مافیا کی چنگل سے واگزار کرا لیا۔ مشتعل افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ کراچی کی سڑکوں پر اب گاڑیاں ہچکولے نہیں کھائیں گی، نہ سڑکیں تالاب بنیں گی۔ شہر کی تمام سڑکوں کو اثر نو بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا بڑا اعلان، بڑی شاہراہوں کے ساتھ گلیوں کی سڑکیں بنانے کا بھی وعدہ کیا۔ کہا سڑکوں کے حوالے سے موصول شکایات کا نوٹس لیا گیا، صوبے بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں، خطرناک عمارتوں کے بارے میں بھی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ جہاں بھی غیر قانونی عمارتیں ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو خاص طور پر مخدوش عمارتیں ہیں، خطرناک عمارتیں ہیں جن سے لوگوں کی انسانی جانوں کا خطرہ ہے، ان کا کافی کام ہو چکا ہے۔ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے ان سیلاب زدہ علاقوں میں گئے، تکالیف کو دور کرنے کے لیے جو بسپ کا نیٹ ورک ہے اس کے تحت ان کی فوری مدد کی جائے۔ سینئر وزیر شجر انعام میمن سندھ میں جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے قیام کے لیے سرگرم ہیں۔ معروف ملٹی نیشنل برقی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے وفد نے شجر انعام میمن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کمپنی نے اپنی الیکٹرک گاڑیوں اور ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ میں برقی گاڑیوں کے فروغ سے شہریوں کو صاف، محفوظ اور پائیدار سفری سہولتیں میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ نجی شعبے کے ساتھ مل کر چارجنگ سٹیشنز اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع ہے، جہاں 10 سالہ ٹیکس استثنا سمیت متعدد مراحل دی جا رہی ہیں۔ فائلیں کھلیں گی، احتساب ہوگا۔ محکمہ بہبود آبادی کے 5 شعبوں میں بڑی کرپشن کا انکشاف، سرکاری کھاتوں میں ہیر پھیر کرنے والے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز، ڈی جی بہبود آبادی سے ریکارڈ طلب۔ بجٹ افسر سرفراز لغاری 5 مالیاتی عہدوں پر براجمان، افسر پر کرپشن کے بھی سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ محکمہ بہبود آبادی میں میگا مالی کرپشن سکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کرتے ہوئے محکمہ بہبود آبادی کے ڈائریکٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس کے مطابق بجٹ افسر سرفراز احمد لغاری پر مالی کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جو طویل عرصے سے متعدد مالیاتی عہدوں پر فائز ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مالی سال 2024 اور 2025 کا مکمل ریکارڈ 13 اکتوبر تک طلب کر لیا ہے۔ تحقیقات میں محکمے کے 5 شعبہ جات اور متعدد نجی وینڈرز کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ بہبود آبادی میں مالی بے ضابطگیوں کے ثبوت ملنے پر فائلیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کے گھوسٹ ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، ملازمین کی حاضری کے لیے بایومیٹرک سسٹم نصب کیا جائے گا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا اعلان، واضح کیا پینشن کا حصول آسان بنانے کے لیے نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ تنخواہوں، الاؤنس اور انکریمنٹس کی منظوری محکمے کا اختیار، بقایا تنخواہیں اور الاؤنس 10 سال تک کلیم کیے جا سکیں گے۔ ٹی اے ڈی اے دعویٰ کی مدت
3 साल मुकर्रर। महकमा खजाना ने नई पॉलिसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, जिस तरह आपने बताया कि अपने मुलाजमीन को उनके सैलरी सैप के कन्वर्ट किया, पहली दफ़ा तारीख में ये वाहिद कौंसल है जिसने मुलाजमीन की तनख्वाहों को सैफ के ज़रिए सेफ करके रख दिया, ताकि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो गोश्त मुलाजमीन होते हैं उनके लिए, जिनका राइट है, जिनका हक मारा जाता है, उनको सेफ करने के लिए हमने जो जीनियन जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका डेटा सेफ में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ साथ अब हम जो पेंशनर का मसला है उनको भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और जो पेंशन हजरात मुश्किलात में थे कई सालों से, जिनकी पेंशन के लिए दरबदर टोकरे खा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट और KMC इस मसले को भी जल्द हल करेंगे, क्योंकि उनका हक है, राइट है, जो ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से जो उनकी कटती थी रकम, तो उनको अक़दार को दिया जाएगा। इस पर हम लगे हुए, मेयर साहब की कोशिश है, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको भी जल्द कंप्लीट करके उन अक़दारों को उनका हक दिया जाएगा। 100 से ऊपर मेरे ख्याल में गोश्त मुलाजमीन थे जो कई जगहों से तनख्वाह ले रहे थे, तो यही सेफ सिस्टम के ज़रिए उन गोश्त मुलाजमीन का एडिफाई भी हुआ, उनसे वो रिकवरी भी कराई जाएगी जो उन्होंने सैलरियाँ ली हैं जिस डिपार्टमेंट से, तो उनको एक जगह की सैलरी मिलेगी। तो इससे सेफ सिस्टम में जाने से इदारों का अभी बेहतर होगा, नुकसान से बचेंगे। जो एक शख्स 3 जगह से सैलरी ले रहा है और ड्यूटी कहीं ना करे, तो ये भी ज्यादती है। तो इस सिलसिले में हमने ये कोशिश की थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम कामयाब हुआ सेफ के जरिए। भत्ताखोरों का नेटवर्क वसी बैरून मुल्क से भी पर्चियां भेजने लगे। लियारी गैंगवार कमांडर बैरून मुल्क से भत्ता वसूली में मुलविस निकला। वसीउल्लाह लाखू ताजरों को दुबई और ईरान से ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया, रेड वारंट जारी करने की सिफारिश। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तफरीही मकामात की रौनकें बहाल करने के लिए मुतहर्रिक। किडनी हिल पार्क में परिंदों की अफजाइश के लिए खुसूसी पार्क बनाने का फैसला कर लिया। पार्क में परिंदों को कुदरती माहौल फराहम करने से मुतालिक इक़दाम किए जाएंगे। पार्क में परिंदों की नशोनुमा और नायाब परिंदों की अफजाइश मुमकिन हो सकेगी। किडनी हिल पार्क में परिंदों के लिए बनाए जाने वाले पार्क पर 19 करोड़ 99 हज़ार रुपए की लागत आएगी। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे इंजीनियरिंग की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया है। 30 अक्टूबर तक टेंडर से मुतालिक दरख्वास्तें महकमे इंजीनियरिंग की जानिब से वसूल की जाएंगी। नाथा खान पुल के मुतबादिल सड़क की तामीर का फैसला, मुतबादिल रास्ता बनाने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा महकमा इंजीनियरिंग ने सर्वे शुरू कर दिया। नाथा खान पुल का मुतबादिल रास्ता बनने से ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। नशइयों के सरिया चोरी करने के बायस नाथा खान पुल बार बार टूट फूट का शिकार होता है। नाथा खान पुल को शहर को एयरपोर्ट और बड़ी शहराओं से मिलाने वाला एक अहम रास्ता है। कोरंगी का इलियास कोट रोड सेक्टर 51C जंजाल गोट के मकाम पर 15 बरसों से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली के बायस दर्जनों आबादियों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। तरक्की के दावे धूल में उड़ गए। इलियास गोड रोड पर सफर भी खतरा बन गया। 10 किलोमीटर तवील इलियास गोड रोड कोरंगी की दर्जनों आबादियों के लिए आमदोरफ्त का एक अहम जरिया है, लेकिन जंजाल गोट के मकाम पर निस्फ किलोमीटर का हिस्सा पिछले 15 बरसों से बदतरीन टूट फूट का शिकार है। आवाम का कहना है कि ये सड़क अब ऊंचे टेलों और गहरे गढ़ों में बदल चुकी है, जहां गाड़ी चलाना तो दूर पैदल गुजरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। रोड के हालात इतने खराब हैं कि अगर जो यहाँ से किसी मरीज को ले जाया जाए ना तो वो यहीं पर ही मर जाएगा। दूसरी बात ये कि इतने साल हो गए हैं इस रोड को, कोई पुरसान हाल नहीं है कि कोई लोग, कोई पार्टी, कोई हुकूमत, कोई गवर्नमेंट का बंदा आके या कोई सिंध हुकूमत का बंदा आके इस रोड को बनवा सके। शहरी कहते हैं कि इस रोड पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। यहाँ पर परेशानी बहुत है। यहाँ पर एडी की एम्बुलेंस आती है, वो आते नहीं है, कॉल करते हैं तो नहीं आते, तो बोलते हैं आप कोई और गाड़ी बुला लें, क्योंकि वहाँ गड्ढे बहुत हैं। तो लोग अक्सर मरीज तो घरों में मर जाते हैं, तो दम तोड़ देते हैं, दिल का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, कोई भी हो। रिहायशियों का कहना है कि सिर्फ सड़क ही नहीं, इलाके में गंदगी, कचरे के ढेर और पानी की रसाव ज़दा लाइनों ने जिंदगी मजीद अजीरन बना दी है। कैमरामैन अमजद अली के साथ मोहम्मद रिजवान अहमद, सिटी 20। रोशनियों का शहर कराची अब कचरा सिटी बन चुका है। लांढी में सड़क किनारे कचरा कुंडी की वजह से फजा मुताफिन हो गई।
जबकि मलीर हॉल्ट वाली सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मजीद दुआ शकील पराशा की रिपोर्ट में। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला शहर कचरे के ढेर में बदल गया। कराची की चमक दमक, चकाचौंध और रोशनियां कचरे के अंबार में कहीं गुम हो गईं। सफाई का नाकिस निजाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कराची जो आबादी के लिहाज से सिंध का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती मरकज है, वो सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से गंद और गलाजत में तब्दील हो चुका है। रोशनियों का शहर बदकिस्मती से कचरे के ढेर में बदल चुका है, जिससे यहाँ की तमाम तर रौनकें मान पड़ती जा रही है। राउंड फिगर कोई 1 साल हो चुका है जो कि यहाँ पे इंतजामी बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है। अब सामने देखिए मलिर हॉल्ट से अंदर का रोड है, मॉडल कॉलोनी साथ लगता है, सामने प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, बड़े लोगों का यहाँ से गुजर है, स्कूल कॉलेजेस लोग स्टूडेंट्स जाते हैं, मेल फीमेल, उनके लिए रास्तों में गुजरना मुश्किल है, गाड़ियाँ यहाँ पे पलट जाती हैं, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, कोई काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लांडी का इलाका सीवरेज और गलाजत के बायस शहरियों के लिए अजियत का सबब बन चुका है। लांडी तामली सड़क का एक ट्रैक गंदे पानी में डूबा हुआ है। 5-6 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पे कचरे के ढेर, यहाँ और दूसरी जगह से लाके यहाँ कचरा फेंका जाता है। इंतजामिया से शिकायत की, टाउन नाज़िम से शिकायत करी और काउंसलर से शिकायत करी, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हर चीज़ से महरूम है, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ से महरूम है हम। यहाँ टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हर चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है और गंदगी, आप गलियों में जाकर देखें, पानी हम खारा पानी भरने के लिए दूर से लेके आते हैं। सड़क पर जमा गंदा पानी ताफुन फैला रहा है, बल्कि सड़क किनारे मौजूद कचरा कुंडी की गलाजत सीवरेज के पानी में मिलकर सूरत हाल मजीद अबतर कर रही है। गंदा पानी और सीवरेज के ढेरों में आवारा कुत्तों ने बसेरा कर लिया। शहरी बल्दियात की इंतजामिया से एक्शन के मुंतजिर हैं ताकि इनके ये दिदराना मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन इमरान एकी के साथ दुआ शकील, सिटी 21। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियात की शिकायत बढ़ने लगी। कोरंगी 6 नंबर में सीवरेज का निज़ाम एक माह से तबाही का मंजर पेश कर रहा है। गटर उबलने के बायस अल्लाह रखा रोड और अतराफ की गलियां गंदे पानी में डूबी हुई हैं। इलाका मकीन अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मानसून बारिशों के बाद नकासियाब का निजाम बैठ गया। कोरंगी नंबर 6 की मरकजी मार्केट के रास्ते और अतराफ की आबादी शदीद मुतासिर है। शहरी कहते हैं कि 1 माह से गटर उबल रहे हैं मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ नमाजी भी जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं। यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, यकीनन लोग बेताजा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इलाका मकीनों के मुताबिक गलियों और सड़कों पर बहते गंदे पानी से पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ है। मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां फैल रही हैं, जबकि नमाजियों, तलबा, खरीदारों और दुकानदारों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पूरा वहाँ से गटर बह रहा है, बहुत से मीडिया भी आई है और भी आई है, किसी गवर्नमेंट ने किसी ने अभी से कोई इसमें एक्शन नहीं दिया। यहाँ पे घर भी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो यहाँ पे नमाजियों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है और दुकानदार भी इतने परेशान है। लांडी नंबर 6 जलेबी चौक के मकीनों और दुकानदारों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर गटर साफ करके सीवरेज निजाम को बहाल किया जाए ताकि शहरियों को निजात मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। लियाकताबाद सिंधी होटल में प्लास्टिक के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग ने गोदाम में मौजूद प्लास्टिक का सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर जला डाली, जबकि मुल्हिका गोदाम को भी नुकसान पहुंचा। आग के बायस करीबी दीवारों में लगे पंखे और मशीनें भी मुतासिर हुई। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले मनसूखी के खिलाफ तलबा की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फ्रीकैन को 17 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। जमीन पर कब्जे के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत, पुलिस की कारकर्दगी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, DSP मंगू पीर को तलब कर लिया। शाह कॉलोनी में पार्क की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने पार्क से मुतसिल मुतनाज़ा अराजी पर तामीरात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर शाह फैसल टाउन का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। डिफेंस में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल, मुल्जिम अरसलान को जुनूबी की अदालत ने गैर कानूनी असलहे के मुकदमे से बरी कर दिया। मकतूल के लवाहकीन और मुल्जिम के दरमियान समझौता तय पाया। समझौते के बाद फ्रीकैन ने मुल्जिम को माफ कर दिया। बच्चे को मुनशियात फरोश जाहिर करने और जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में बच्चे को मुल्जिम बनाने वाले पुलिस एहलकार मफरूर करार। गर्दी की अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। नया नाजमाबाद के घर में वीड के पौधे बरामद होने का केस, वसी की अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर
पर जेल भेज दिया। सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी। आदमी मार्केट में सोना $85 महंगा हो गया। शहरी कहते हैं शादियों के लिए मसनूई जेवरात ही खरीदेंगे। हुकूमत सोने के नर्ख कम करे। अब शादियों में सोने की जगह दुआएं दी जा रही हैं। शादियों पे बेटियों को सिर्फ दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्सपेंस है और ऊपर से गोल्ड जो है वो उससे ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो अब सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं बेटियों को। बहुत गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। गरीब बेचारा क्या करे, अमीर तो दे लेंगे लेकिन गरीब नहीं दे सकता। गरीब के लिए जो है ना मुश्किल है। अब जो है सोना जो है 4 लाख तो हो ही गया, तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेटियों को इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। स्टॉक मार्केट में तेज रफ्तार इंडेक्स को ब्रेक लग गया। कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज मंदी के बादल। 100 इंडेक्स 907 पॉइंट्स की कमी से 1,65,266 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेज रफ्तार इंडेक्स को ब्रेक लग गया। कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज मंदी के बादल। 100 इंडेक्स 907 पॉइंट्स की कमी से 1,65,266 की सतह पर बंद हुआ।